ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਕਮਾ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਭ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਭ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਦਾ ਧਨਵਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਲਾਭ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੰਗਾਲਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰਾ ਅਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਅਜੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਕੁੱਲੀ ਜੁੱਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਪੂਰਬਲੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਪੂਰਬਲੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਵਰਨਾ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੈਸੇ ਕਬੀਰ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ, ਹਮ ਨਿਰਧਨ ਜੋ ਇਹੋ ਧਨ ਪਾਇਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਧਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੀ ਦੌਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਦੌਲਤ ਏ ਸਰਮਾਇਆ ਏ ਈਮਾਨ ਬਵਦ, ਹਰ ਗਜ਼ਾ ਅਜ਼ ਯਾਦ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨ ਬਵਦ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਫਕੀਰ ਨੂੰ, ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਕਮਾ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਭ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਨਿਰਧਨਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਰਧਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਨਿਰਧਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਕਿਉਂ? ਅਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਧਨ ਹੈ, ਅਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਗਰੀਬ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਪੂਰਬਲੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਪੂਰਬਲੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦੇ ਧਨਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਨਿਰਧਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦੇ ਬੋਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਈ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਧਨਾਢ ਕੌਮ ਯੂਰਪ, ਅਮਰੀਕਾ ਸਭ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੇ। ਪਤਾ ਈਸਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਆਖੇ ਕਿ ਇੱਕ ਊਠ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬੋਲ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਰਬ ਦੇਸ਼, ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਈਸਾ। ਉੱਥੇ ਊਠ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਾਨਵਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਆਖੇ ਕਿ ਇੱਕ ਊਠ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਆਖੇ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦਾ ਧਨਵਾਨ ਭਗਵਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਇਤਨਾ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਤਨਾ ਬਾਹਰ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇ ਝਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਝਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਨ ਉਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਭੱਜ ਦੌੜਨਾ ਲੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਲੱਭ ਪਏਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਚਲ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚਲ ਹੈ, ਟਿਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮਨ ਟਿਕਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭੱਜ ਦੌੜਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਛ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਬਾਹਰੋਂ, ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਰੱਬ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਟਿਕ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਓ, ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਚਲ ਕਰੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਸ਼ਚਲ ਹੈ, ਮਨ ਚੰਚਲ ਹੈ। ਚੰਚਲ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ? ਚੱਲ ਚੱਲ, ਹਰ ਵਕਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਨ ਮਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਛੋਟੀ ਦਾ ਧਨਵਾਨ ਬਣ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਭ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਕਿਉਂ? ਅਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਪੂਰਬਲੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਨਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ,
ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ नहीं होवेगा, पत्थर होवेगा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। भगत वडा राजा जनक है, गुरमुख माया विच उदासी। इन्ना धन, इतना वैभव, इतना कुछ, लेकिन उदास हो गया, निराश हो गया। बहुता ज्ञान प्राप्त कर लैण का भी एक लाभ है कि अंदर दी अज्ञानता दिखाई देने लग पैंदी, अंदर दी ना समझी दिखाई देने लग पैंदी। एक ना समझ मनुख नूं अंदर दी ना समझी नहीं दिखाई देंदी, क्योंकि अजे बाहरों भी ना समझे, बहुत कुछ इसनूं ज्ञान नहीं, समझ नहीं है। पर एक बिल्कुल अनपढ़ मनुख नूं अंदर दी ना समझी दिखाई देन लग पे तो समझ लेना है उसकी पूर्वली तपस्या है, पूर्वली मेहनत है, पूर्वले संस्कार ने। पर एक चोटी दे ज्ञानी नो, विद्वान नो, पढ़े लिखे नो भी अंदर दी मूर्खता नहीं दिखाई देंदी, तो समझ लेना अक्षरी ज्ञान का दिल दिमाग ते इतना बोझ पै गया है, उन्हें दिल दिमाग नूं पत्थर बना देता है। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इसे नूं महाराज कहते ने, पढ़िया मूर्ख आखिए जित लभ लोभ अहंकार। बहुती शक्ति प्राप्त कर लैण का एक लाभ है, अंदर दी कमजोरी दिखाई देन लग पैंदी। उन्होंने दस पैंदा मेरा हुक्म हर जगह नहीं चल सकता। बहुती सता, बहुती ताकत प्राप्त कर लैण का एक लाभ है, अंदर दी कमजोरी दिखाई देन लग पैंदी है। सिकंदर आजम खुले लॉन दे च बैठा सी, हवा हो रही ले, उपरों एक कौआ लंघिया ते बिठ कर लिया। सिकंदर महान कहंदा, लै किहड़ी गल दा सिकंदर महान, कौआ बिठ कर गया मेरे ते चला गया, मैं की करा, मैं की कर सकदा, साडा हुक्म ते कौवे ते भी नहीं चलदा, किहड़ी गल दे सिकंदर महान। पर एक शक्तिशाली मनुख इस तरह सोच सकता है। बहुती शक्ति प्राप्त कर लैण का एक लाभ है, अंदर दी कमजोरी दिखाई देन लग पैंदी है। एक कमजोर मनुख नूं अंदर दी कमजोरी नहीं दिखाई देंदी, क्यों? अजे बाहरों कमजोर है, अजे ना पिंड दा चौधरी है, ना ML है, ना मिनिस्टर है, कुछ भी नहीं है बेचारा, कोई सत्ता नहीं, कोई ताकत नहीं, कोई धन संपदा नहीं। पर एक कमजोर मनुख नूं भी जे अंदर दी कमजोरी दिखाई दिती है, ये पूर्वली तपस्या उसदी, संस्कार ने। पर एक शक्तिशाली मनुख नूं भी अंदर दी एक कमजोरी नहीं दिखाई दिती, तो समझ लेना ये कोल दिल दिमाग की थां ते जड़ बुद्ध है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सता ते सत दा हमेशा घोल रहा है, ये एक बदकिस्मती है। और गुस्ताखी माफ, जितना सता दे जिसका शौक होगा उतना ही अकल तो हीणा होंदा जाएगा। ये भी मैं अर्ज कर दें, कई दफ़ा हैरानगी आती है, 3 करोड़ बंदियां दा कातिल है माओ से तू, 3 करोड़ नूं उजाड़ के ते 3 करोड़ नूं मार के उन्हें चाइना दे क्रांति लियांदी, बई मैं मनुखां दे क्रांति लियानी है, तो क्रांति लियानी है 3 करोड़ नूं मार के ते 3 करोड़ नूं उजाड़ के। 2.5 करोड़ बंदियां दा कातिल है हिटलर, हलाकू जिथों लंघदा सी बस्तियां उजाड़ के लंघदा सी। चंगेज खान दे घोड़े जद लाशां तो लंघदे सन नचदा सी, हसदा सी, खुश हुंदा सी। इन्ना दिल दिमाग पत्थर हो गया, इन्ना मूड हो गया। गुस्ताखी माफ, जद उस सत्ताधारी ने आखे साडे देश दीयां समस्यावां बहुत ज़्यादा ने, बहुत ज़्यादा ने, क्योंकि वख-वख भाषावां ने, वख-वख मजहब ने, वख-वख पहरावे ने, वख-वख खान पान है, वख-वख तमीज़ और तमद्दन है।
और इस तरह के पुरुष सुनन दे शौक नहीं रखते। जितना बाहर मुखी मनुख होवेगा वो अपने नेड़े तो होंदा नहीं तो सुने की हक नहीं सुन सकता। तो गुरबाणी तो खेड़ सारी सुनन दी है। नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नास। बाद विच मेरा समा सी, मैनू उत्थे कहना पिया, मैं कहा 20-22 देश ने अरब, मिस्र है, जॉर्डन है, इराक है, लीबिया है, कुवैत है, सऊदी अरब है, ट्यूनिस है, मराकश है, बहुत सारे देश ने। इन्हां सारियां दी भाषा इक्को ही है, अरबी। कतर है, यमन है, बहरीन है, दुबई है, अबू धाबी है, शारजा है, ना सारियां दी भाषा अरबी है। सारियां दा पहरावा भी इक्को ही है, सारियां दा धर्म ग्रंथ इक्को है, सारियां दा मजहब भी इक्को ही है, सारियां दा कल्चर, सारियां दी तहजीब भी इक्को ही है, भाषा भी इक्को ही है, मजहब भी इक्को ही है, धर्म ग्रंथ भी इक्को है, खान पान की सहमति है, लेकिन सारे एक दूसरे दे खून दे प्यासे, एक दूजे दे खून दे प्यासे। कितनी दफा ये आपस में खून खराबा कर चुके हैं, लड़ चुके हैं। अजे भी इन्हां सारियां दी आपस दे नहीं बनती। एक मजहब ने भी इन्हों एक नहीं किया, एक धर्म ग्रंथ ने भी इन्हों एक नहीं किया, एक भाषा ने भी इन्हों एक नहीं किया, एक तहजीब ने भी इन्हों एक नहीं किया। दो भरा लड़ पैंदे ने, खून एक आउंदा है, मजहब एक आउंदा है, भाषा एक आउंदी है, लड़ पैंदे ने। जिथे स्वार्थ टकरा जान उत्थे भाषा का एक आउणा की मैंने रखता है, तो मजहब का एक आउणा की मैंने रखता है, कल्चर का एक आउणा की मैंने रखता है। पर एक जड़ बुद्ध नूं समझ दे च नहीं आवेगी गल। जगत दे च एकता मजहब के नां ते हो ही नहीं सकती। गुस्ताखी माफ। कलगीधर पातशाह कहते हे परमात्मा तेरा कोई मजहब नहीं है। ध्यान नाल सुनना। ना मस्तंग अमजबे ना मस्तस्त अजबे। जाप साहब थोड़े विचों जिहड़े पढ़ते होणगे या कंठ होवेगा। ना मस्तंग अमजबे, नमस्कार है प्रभु तैनू तेरा कोई मजहब नहीं, कोई मजहब नहीं। ना तो हिंदू है, ना तो मुस्लिम है, ना तो सिख है, ना तो जैन है, ना तो बौद्धी है, ना तो यहूदी है, ना तो पारसी है, ना तो ईसाई है। तेरा कोई मजहब नहीं, तेरी कोई जात नहीं, तेरा कोई रंग रूप नहीं, तेरा कोई चक्र चैन नहीं। न मस्तंग अमजबे न मस्तस्त अजबे। एक नदी का नाम भी हो सकता है, इलाका भी हो सकता है। गंगा है, नर्मदा है, सतलुज है, ब्यास है, रावी चनाब है, गोदावरी है। इराक दे दजला ते फरात है। मिस्र दे नील नदी वगदी है, इंग्लैंड दे थेम वगदा है। वक वक दरियावां दे नाम, उन्हां दे मुल्क, उन्हां दे इलाके। और जांदे ते सारे सागर की तरफ पैने। ते सागर दे जद लीन आउंदे ने तुसीं लभ सकदे हो गंगा कित्थे है सागर दे, समुंदर दे, गोदावरी कित्थे, दजला ते फरात कित्थे है, नील नदी कित्थे है, थेम कित्थे है। सागर दे ते केवल सागर ही मिलता है। उतने ही चिर तक मनुख की जात है, पात है, मजहब है, सब कुछ है, जितने चिर तक ये परमात्मा दे च लीन नहीं होया। परमात्मा च लीन होया तो सिवाय परमात्मा दे होर कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। ये समझ सताधारी को नहीं आती। उन्हें इस देश की जो पुरानी संस्कृति है, ऋषि मुनिया का देश से, इनू मिटाण का तहिया कर लिया। उतरन लगे जनेऊ, कटन लगियां चोटियां, मिटन लगे मत्थे दे तिलक। मुख्तसर अर्ज मैं करा, ए तिलकधारी, ए जनेऊधारी, ये चोटीधारी, केसाधारी सारे फरियाद लेके आए वक़्त दे एक महान त्यागी बैरागी दे कोल। जन्म साखी
भाई बाला ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਰਫ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਕੀਰੀ ਚੀਸਤ, ਫਕੀਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸੰਤਪਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸੰਤ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਫਕੀਰੀ ਚੀਸਤ, ਫਕੀਰੀ ਕਿਆ ਹੈ? ਚੂੰਕਿ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਰਫ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਫਾਰਸੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਕੀਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਬਤਦਾਏ ਫਕੀਰੀ ਫਨਾਸਤ, ਇੰਤਹਾਏ ਫਕੀਰੀ ਬਕਾਸਤ। ਕਿਸੇ ਉੱਚੇ ਆਦਰਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ, ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਮਰ ਤੱਤ ਦੇ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਇਸੇ ਨੂੰ ਫਕੀਰੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਸੰਤਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੁਰਸ਼ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਵੇ ਹਲਚਲ ਹੋ ਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਿਲਕ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਜਨੇਊ ਬਚ ਸਕਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਧੀ ਚੋਟੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਲਕ ਸਨ। ਅਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਚੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਬੇਟਾ ਤੁਮ ਹੀ ਪੰਥ ਕੇ ਬੇੜੇ ਕੇ ਖਵਈਆ, सर भेंट करो चाक ताके चले धर्म की नैया, ले दे के तुम्हें थे मेरे गुलशन के बकैया, लो जाओ राह तकते हैं सब खुल्द में भैया। ऐ मेरे बच्चे मेरी एक ख्वाहिश पूरी करो। ये मासूम लाडले कहते हैं महाराज थोड़ी ख्वाहिश असी पूरी करनी है। आप जी दी की ख्वाहिश है दसो। महाराज उथे कहते ने, ख्वाहिश है तुम्हें तेग चलाते हुए देखें। अला यार खां, ख्वाहिश है तुम्हें तेग चलाते हुए देखें, हम आंख से बरछी तुम्हें खाते हुए देखें। पिता दा हिरदा पर पुत्रां दे सामने धर्म महान है, सच्चाई महान है। पुत्रां नूं कुर्बान किया जा सकता है धर्म तो। फिर अगों जो कुछ कहते ने अला यार खां इंज कलम बंद करते हैं, हमने ही कहा बाप को जान दीजे धर्म पर। ब्राह्मण जब फरियाद लेके आए, मेरे पिता ने कहा कोई महान आत्मा कुर्बानी देवे। मैं खड़ा हो गया सी, मैं थोड़ी उम्र दा सी, मैं ही पिता नूं आखिया सी किसे नूं पानी दे विच तैरना सिखाना होवे पहले आप तैरना पैंदा, किसे नूं मरना सिखाना होवे पहले आप मरना पैंदा। खड़ावा पहन के गुरु तेग बहादुर साहब जी चल पे। हमने ही कहा बाप को जान दीजिए धर्म पर, लोग कहते हैं अब आपको जान दीजिए धर्म पर। मैं ही पिता नूं आखिया सी, मैं ही अज थानू कहना। कहावत प्रचलित हो गई। गुरु तेग बहादुर साहब ने बावां पकड़ लियां, पसारियां हुई बावां पकड़ लियां और कह दिता मैं अपना शीश ते दे देंगा, ये बांह नहीं छोड़ांगा। बाहां जिन्हां दी पकड़िए, सिर दीजे बांह ना छोड़िए। सिर दे के बावां नूं मजबूत कर दिता। खून अपना डोलिया, चांदनी चौक दे मत्थे दा तिलक बच गया। पुराणा दी डोरी नूं तोड़ के जनेऊ दी डोरी नूं बचा दिता। इस वास्ते इस गुरपुरब ते मैं गुरुद्वारा सीसगंज साहब अक्सर कहता हुन्ना, ये पुरब ओ मनान गुरु तेग बहादुर साहब दा
जिन्हां दे मत्थे ते तिलक है ते जिन्हां ने जनेऊ पहने होया। तिलक जंजूर आखा प्रभ तांका, कीनो बड़ो कलो मैं सखा। किसने अपने प्राणों की डोरी नूं तोड़ दिता ते जनेऊ की डोरी नूं बचा दिता। किसने अपना खून डोलिया ते मत्थे दा तिलक बचा दिता। ये लगया होया मत्थे दा तिलक, ये धन गुरु तेग बहादुर साहब दा खून है, वही चमक रहा है। ये पहनी हुई जनेऊ की डोरी, ये धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दे प्राण ने। देश की संस्कृति बची, देश का धर्म बचया। नहीं तो एक काफिला जो अरब तो चलिया सी, उसने ईरान, अफगानिस्तान, उज़बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान सारियां नूं लपेट दे चलिया। इत्थे सारी जगह ते सनातन मत सी ते बौद्ध मत सी। दुनिया की सब तो खूबसूरत ते उच्ची मूर्ति अफगानिस्तान दे सी महात्मा बुद्ध दी, जो 6-7 साल पहले तालिबाना ने तोड़ी है। दुनिया की सब तो उच्ची मूर्ति दास ने देखी बामिया दे बौद्ध मंदिर। सारे दा सारा बौद्ध देश सी अफगानिस्तान, सारे दा सारा सनातनी देश सी ईरान, उज़बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, सब सनातनी देश। अजे भी बहुत सारी संस्कृति मिलती है तो नाम मिलते हैं। ये काफिला चलिया, लेकिन ये काफिला सारियां नूं अपनी लपेट दे च लैंदे आया इस देश नूं पूर्ण तौर पर अपनी लपेट च नहीं ले सकिया। कवि संतोख सिंह जी जो कुछ लिखते हैं, वो एक छंद थानू सरवण करा के मैं समाप्ति कर दिया। छाए जाती एकता एको ही, जिमें अफगानिस्तान एको ही मजहब है। थोड़े जिहे विचारे सिख रहिंदे सन निकल आए ने, हिंदू निकल आए ने। हालात खराब। जो अफगानिस्तान, ईरान, उज़बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तो इंडोनेशिया च होया है, इस देश दे भी यही कुछ होना सी, ऐसा कवि संतोख सिंह जी कह रहे हैं। छाए जाती एकता अनेकता बिलाए जाती, होवत कुचीलता कतेबन कुरान की। पाप ही परपक जाते, धर्म दसक जाते, बरन गरक जाते, सहत विधान की। देवी देव देहुरे संतोख सिंह दूर होते, रीत मिट जाती कथा बेदन पुराण की। श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परम सूर, मूरत न होती जो पे करना निधान की। ये बख्शिश भरी मूर्ति जे ना होंदी, ये संस्कृति नहीं बचनी सी। हमने ही कहा बाप को, जान दीजिए धर्म पर, लोग कहते हैं अब आपको, जान दीजिए धर्म पर। मैं पिता नू आखे सी कुर्बान हो जाओ, मैं अज बच्चों थानू कहना कुर्बान हो जाओ। किस दी कुर्बानियां दा सदका ये संस्कृति बची है, ये धर्म बचे है, ये शिवाले बचे ने, ये रामायण की कथा बची है, ये जनेऊ बचे है, ये तिलक बचे है। सारे भारत वासियों नूं पूरी श्रद्धा दे नाल इस पुरब नूं मनाना चाहिए, सानू सहयोग देना चाहिए। पर तिलकधारियां नूं ते पता ही नहीं है किस दा खून है जो साडे मत्थे ते तिलक चमकदा पिया। कि किस दे प्राणों की डोरी टुटी है जो जनेऊ की डोरी बची है। तिलक जंजू राखा प्रभ तांका, कीनो बड़ो कलो मेरा साका।